Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, before beginning the video, I would like to mention one thing over here, that is I want to talk about Sunita Williams, who has returned after spending 286 days in space. है ना, वो 286 दिन स्पेस में बिता के आई हैं. She is a woman of I would say she has presented an example of great perseverance, and she also has set an example for the young minds, for the younger generation, that it is all in your will. अगर आप चाहो तो कुछ भी पॉसिबल है. उनका मिशन था 8 डेज जाने का, 8 दिनों के लिए उनको था कि वो जाएंगी, वहाँ स्टे करेंगी, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस 8 दिन की बजाय वो और उनका एक कलीग है, उनको 286 डेज रहना पड़ा, and now they are back. So I would like to congratulate them, and it is also a very I would like this opportunity, through my video I would like to salute this lady. मैं उन्हें सलामी देना चाहूँगी for her determination, for her willpower, and she has been a tremendous example. She is a role model for each one of us. कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना चाहें तो impossible, there is nothing impossible, है ना. It's all in our head, determination होना चाहिए. So let's begin with the video. आज की वीडियो में मैं 10 fancy words लेके आई हूँ. Why I'm saying fancy words? क्योंकि ये words ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादातर यूसेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे. Along with the words, I have given the meaning of the words, and I've also tried to frame a sentence. एक सेंटेंस मैंने लिख रखा है, बट समझाते मैं और एग्जांपल्स दूंगी. And along with the words, either above the word, in some words I have written below the word, how are you going to pronounce the word, है ना. उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, हमें शब्द का मतलब पता लग जाएगा, हमें उसका सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ करना है, किन किन केसेस में यूज़ करना हमें पता लग जाएगा, बट उसका प्रोनाउंसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है ना, हमें पता होना चाहिए कि कैसे प्रोनाउंस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वर्ड इज, फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्पेल द वर्ड. द स्पेलिंग इज QUOTIDIAN. Now how are you going to pronounce this word? It's quotidian. Quotidian. Okay, I have written out to see quotidian. ठीक है, जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है मैंने बिल्कुल वैसे ही क्या कर दिया है, उसको मैंने ब्रेक कर दिया है, हिंदी में लिख दिया है ताकि इजी रहे. ठीक है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वाटिडियन इज डेली ऑर्डिनरी. मतलब ऑर्डिनरी जो रोजमर्रा में हमारे इस्तेमाल होता है, डेली जो ऐसी चीज, ऐसी कोई हैबिट जो हम रोज करते हैं. एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ अ क्वाटिडियन लाइफ. That yes, it is very much true कि आज की जनरेशन, हम लोग we cannot live without mobile phones, है ना. हवा पानी के बिना एक सेकंड के लिए रह सकते हैं, but mobile phones no. Let me give you more example. Watching Netflix has become a part of my quotidian life. ठीक है. या अगर मैं बोलूँ कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप रोज करते हैं, है ना, आपकी it is very much part of your schedule. Having breakfast tea before breakfast is very much essential, or it has become a part of my quotidian life. तो quotidian समझ में आ गया. जब भी आपको ordinary का इस्तेमाल करना हो या daily का इस्तेमाल करना हो तो daily और ordinary मत बोलिएगा. What will you say? You will say quotidian. Okay. The next word is quintessential. Quintessential. See, I've broken the word also. I've written quintessential. ठीक है. Quintessential. Quintessential. The meaning of this word is most perfect. Now the word quintessential means most perfect, और I would say कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कोई flaws ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, वो एक perfect example हो. Example I have given is rose is the quintessential flower for Valentine's Day. Valentine's Day है, तो Valentine's Day पे the perfect flower that one must give to his or her beloved is rose. ठीक है. अगर मैं बोलूँ और एग्जाम्पल लेते हैं क्विंटेसेंशियल का कि my neighbor is a perfect quintessential example of Englishman, है ना. या मिस्टर चौहान या मिस्टर XYZ so and so, या राहुल ले लीजिए, R for Rose, R for राहुल ले लेते हैं. राहुल is the quintessential person, or he is a quintessential example of a perfect husband.
है ना। तो क्विंटेंशियल आप वर्ड तब यूज करेंगे जिसमें जब आप बताना चाहेंगे कि इस चीज में कोई गलतियां नहीं है, कोई फ्लॉज नहीं है, देयर आर नो फ्लॉज इन इट, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल. ओके, the first word was quotidian, this one is quintessential. Quintessential. Okay, now this word LACHRYMOSE, how are you going to pronounce it? This is called lachrymose. Lachrymose. ये जो S है, SE है, इसमें Z की आवाज आएगी. Now what does lachrymose means? It means to tearful or to cry. Lachrymose word, it is an adjective. ठीक है, adjective पता है ना क्या होता है? नहीं पता है तो again I will say go to my channel, adjective पे डिटेल वीडियो बनाई है, देखिए. लैक्रोमोस एडजेक्टिव हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम तब यूज करेंगे व्हेन वी आर ट्राइंग टू से दैट सो एंड सो पर्सन हैज बिकम अ लैक्रोमोस. यू नो, एग्जांपल आई हैव रिटन इज द ड्रामा नीड नॉट टू हैव लैक्रोमोस हीरो. मतलब जो बहुत ही रो रहा है ना. अगर यहाँ ड्रामा की जगह मैं यहाँ लिख देती द ट्रेजेडी वुड हैव बीन मोर परफेक्ट. ड्रामा की जगह आप ट्रेजेडी कर दो, क्योंकि ट्रेजेडी क्या होती है? इट इज फुल ऑफ सॉरो, इट इज फुल ऑफ ग्रीफ, है ना. तो सेंटेंस ये है कि ड्रामा में जरूरत नहीं थी कि एक लैक्रोमोस हीरो रखते. एक एग्जांपल और लेती हूँ कि माय फ्रेंड आफ्टर लूजिंग हर डोमेस्टिक एनिमल और हर पेट हैज बिकम अ लैक्रोमोस. वो बहुत रोती है, शी स्टार्ट्स क्राइंग, वो टीयरफुल हो जाती है. तो अब से आप टीयरफुल नहीं बोलेंगे. व्हाट वर्ड आर यू गोइंग टू यूज? लैक्रोमोस. सी द प्रोनाउंसिएशन लैक्रोमोस. ट्रस्ट मी, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे ना और 2-3 बार आप मेरे साथ बोलेंगे. ये वर्ड मत देखिए, ये वाला देखिए, हिंदी वाला लैक्रोमोस. जब आप प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं तो देखिए कितनी आसानी से फट से आप सीख लेंगे. ओके, द फोर्थ वर्ड इज avalanche. Avalanche. Now what does avalanche means? When a larger amount of snow falls down और इट काइंड ऑफ बोलते हैं ना खिसक जाता है या लैंडस्लाइड हो जाती है. इट इज समवट लाइक दैट व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो स्लाइड्स. ठीक है, नाउ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो स्लाइड क्यों होता है? द रीजन कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी द रीजन कुड बी नेचुरल डिजास्टर आल्सो. अगर अर्थक्वेक आया तो क्या हो गया? एवलांच हो गया. माउंटेन्स पे ज्यादा स्नो हो गई और वो स्लाइड कर रही है, ज्यादा हैवी हो गया है ना, ज्यादा स्नो हो गई है, अर्थक्वेक आया, नेचुरल डिजास्टर, स्लाइड कर गई. या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर ऐसी एरिया है जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है, ज्यादा लोग हो गए हैं, है ना, उस माउंटेन पे, या ज्यादा लोग उस पे मूवमेंट कर रहे हैं, तब भी कभी कभी स्नो स्लाइड हो जाता है. एंड दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट काइंड ऑफ स्वीप्स अवे एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ. वो रास्ते में जो कुछ आता है वो उसको लिए हुए जाता है. सो इन दैट केस देयर इज लॉस ऑफ कोर्स नुकसान होता है. देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, देयर इज लॉस ऑफ देयर इज लॉस ऑफ थिंग्स. चीजें नुकसान होती हैं, थिंग्स गेट डिस्ट्रॉयड. सो इन दैट केस वी यूज द वर्ड avalanche. ओके, नाउ द फिफ्थ वर्ड इज EBULLIENT. How are you going to pronounce it? Ebullient. Ebullient. See, I've written also ebullient. Ebullient. Okay. Now the meaning of this is, again, this is an adjective. ठीक है, ebullient means cheerful person or a person who is full of life. ठीक है, दुख दर्द क्या होता है, परेशानी क्या होता है, उस इंसान को पता ही नहीं होता है. ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, My elder brother is only ebullient member of a family. कि जो मेरा बड़ा भाई है वो एक खाली मेंबर है मेरी फैमिली का जो who is ebullient. So it is an adjective. You can use it for people. You can use it for yourself also. That I am an ebullient person. I don't like to lachrymose every time. देखिए मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स यूज कर दिया ना. I have a friend who has a personality of ebullient. वाकई में I have a friend. He never shares, the sad part of his life. हमेशा he is ebullient, है ना, हमेशा अच्छी बातें शेयर करता है. कुछ भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई दुख परेशानी नहीं होती होगी, उसको होती होगी, but he is a cheerful person, full of life. So from now onwards, what are you going to say? He is an ebullient person. Okay. The next or the sixth word is eccentric.
ECCENTRIC. The pronunciation is also easy. I have written also in Hindi. Eccentric. Eccentric. Now eccentric means when someone behaves in odd manner. Odd manner, by the term odd manner I mean that something that deviates from the ordinary path. कहने का मतलब है अगर कोई इंसान जो नॉर्मल लोग करते हैं अगर कोई चीज उससे हटके कर रहा है ना, तो हम उसे eccentric बोल सकते हैं. Now eccentric can be used in you can say eccentric to somebody in a good sense also and in a bad sense also. For example, I have written, I find my neighbor an eccentric person as he never socializes. मेरा पड़ोसी eccentric मुझे लगता है क्योंकि वो कभी सोशलाइज नहीं करता, कभी हाय हेलो नहीं, कभी मिलता नहीं. तो the word eccentric is appropriate. ठीक है. Next is, this is my favorite and I don't know why but I love the pronunciation of this word, contumacious. 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 ठीक है. तो इसका मतलब होता है disobedient to authority. जब आप या कोई इंसान किसी अथॉरिटी, ना अथॉरिटी कुड बी एनीथिंग. अथॉरिटी आपके घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, व्हेन दे टेल यू टू नॉट टू डू समथिंग, कि आप रात में 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे, है ना, तो वो अथॉरिटी हो सकते हैं. स्कूल में प्रिंसिपल कुड बी अथॉरिटी, कॉलेज में HOD या डीन कुड बी योर अथॉरिटी. ठीक है. So the word contumacious will be used when you are being disobedient to authority. जब आप अपने से अपनी अथॉरिटी का कहना नहीं मानेंगे, in that case contumacious the word will be used. Example I have written, Mr. Verma was contumacious as he never gave the alimony to his ex-wife. Mr. Verma है, he was contumacious क्योंकि उन्होंने जज ने उनको जो डिवोर्स हुआ उनका और जो जज ने उनको बोला था एलिमनी देने के लिए अपनी वाइफ को, he did not agree या he did not give the money to his ex-wife. So what was he? Contumacious. One more example, let me put over here. If I say most of my students in my class are contumacious as they never adhere to what I tell them to do. मेरी क्लास में ज़्यादातर बच्चे क्या हैं? Contumacious हैं because they are disobedient to authority. They do not hear, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं. Okay. Next word is, this is a little tricky word and थोड़ा सा लंबा है. And how are you going to pronounce it? You are going to say sesquipedalian. 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 The pronunciation is sesquipedalian. The spelling is SESQUIPEDALIN. Now what is sesquipedalian? नाम में ही इसके पता लग रहा है, इतना लंबा है ना? तो this word, it has two meanings. If a person in his speech or in his normal talking, if a person uses big words or large words, by large words and big words I mean the words that are larger in size, इनमें consonants vowels ज़्यादा हैं. जैसे ये sesquipedalian में ही देखिए कितने words हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oh my goodness, there are 14 letters in it, है ना? तो sesquipedalian अगर कोई इंसान लंबे स्पीच लेता है, लंबे वर्ड्स बोलता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे sesquipedalian. Example I have given is the assembly, the school assembly was led by the principal. Sesquipedalian speech. होता था ना स्कूल टाइम में, एक तो गर्मी होती थी, उस पर असेंबली होती थी, 20-25 मिनट की, उसके ऊपर से प्रिंसिपल आ जाते थे, वो अपना स्पीच देते थे. और दो अच्छी चीज़ है, बट बीइंग अ किड, बीइंग अ चाइल्ड, गर्मी लग रही होती थी और ये ऐसा होता था कि जल्दी से क्लासेस में जाएं. So what kind of speech the principal used to give? The principal used to give sesquipedalian speech. लंबी स्पीच देते थे and we had to stay on the ground, है ना, जबरदस्ती रहना पड़ता था. Now the ninth word is sycophant. Sycophant. इसमें एक डॉट भी आएगा फैंट में. Sycophant. Now what is sycophant? मैंने इसका इंग्लिश में मतलब ही नहीं लिखा. I've directly written चापलूस. The world is full of sycophants, isn't it? आजकल हर कोई किसी ना किसी की चापलूसी कर रहा है ना? चापलूसी in the sense when you are helping someone and you have a hidden motive behind your helpful nature, कि अगर मैं इसकी मदद करूँगा तो बदले में मुझे ये मिलेगा, है ना? That is why I said you have a behind motive, कि उम्मीद रहती है आपको कि मैं अगर इसकी ये ऐसी हेल्प करूँगा तो ये मुझे बदले में ऐसा करेगा, है ना, मुझे बदले में हेल्प करेगा.
ठीक है। जैसे आपकी कोई फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स हैं, है ना, आपके पास बाइक है, उसके पास बाइक नहीं है, पर वो पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में थोड़े कम अच्छे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको घर छोड़ के आते हैं, बाइक से अपनी घर छोड़ते हैं उसको, फिर आप खुद जाते हैं, बट यू हैव अ हिडन मोटिव कि ये मुझे नोट्स दे देगा या मुझे हेल्प करेगा। सो व्हाट आर यू बीइंग, यू आर बीइंग अ साइकोफैन, ठीक है। आई डोंट लाइक पीपल या सो एंड सो पर्सन डज नॉट लाइक साइकोफैन पीपल या पर्सन इन हिज ऑफिस, ठीक है, उसे साइकोफैन्स नहीं पसंद है। एक तो होता है आप जनरली हेल्प कर रहे हो, यू हैव नो यू नो यू डू नॉट expect anything in return, but when you expect anything in return and you're doing it out of your hidden motive, then in that case the person is called a psychophant. Okay, now the last word in today's video is pallid, PALLID. now pallid means, होता तो ये मतलब पतला पतले दुबले आदमी के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं, या आदमी या आदमी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट यू विल यूज द वर्ड पैलेट, अगेन इट इज एन एडजेक्टिव। पैलेट आप इस्तेमाल करेंगे जब कोई आपको व्यक्ति दुबला पतला, जरूरत से ज्यादा पतला लगे एंड यू फील दैट द पर्सन इज इल और ही इज अनहेल्दी, ठीक है, उसकी तबीयत ठीक ना लगे, कमजोर लगे, वीक लगे, इन दैट केस यू विल यूज पैलेट फॉर द पर्सन। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। एक फटाफट इसका मैं बताना चाहूंगी कैसे कैसे प्रोनाउंस करना है। द फर्स्ट वर्ड इज quotidian, second word is quintessential, this is lachrymose, this is avalanche, this is ebullient, eccentric, contumacious, sesquipedalian, okay. This is sycophant, easy, and this is pallid. If you like my video, please share and subscribe. Thank you for watching.